بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما وفهما ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم تمام تعریف تو حمد و ثنا رب ذوالجلالس کنت بیسن بے شمار درود و سلام برذات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور تہندس آلس تامت درس قرآن خاطر کر میں سوئے آئے مبارکہ بھی اکہ لٹہ تلاوت یس آئے مبارکہ اسہ پتمین کینہن دروسن مز سمجھنچ کوشش کرن ووت بہرحال پتمین دون یا ترین درسن مز پوڑ اسہ کہ موت ایک انسان پر کیسے طاری ہوگی، اس وقت کیا کیفیت اور کیا حالت ہوتی ہے ایک انسان پر، روح کت پٲٹھۍ چھِ قبض یِوان کرنہٕ، اور یہ تہِ آو پوٚر اسہِ کہ انتقال کے بعد یا روح قبض کرنے کے بعد عالم برزخ میں یا قبر میں ایک انسان کے ساتھ کن حالات کا سابقہ ان کو کرنا پڑے گا۔ یہ بیان کرنُک چھُ بنیادی مقصد یہ کہ اس گژھِ موت خٲطرٕ تیٲری کرٕنۍ اور یم مراحل بٕتھِ یِنہٕ وٲلۍ چھِ أسۍ گژھِ تِمن خٲطرٕ انتہٲیی سیریس گژھٕنۍ، تِکیازِ یُس انسان نہٕ موت خٲطرٕ اور یُس انسان نہٕ قبرِ خٲطرٕ سیریس گژھِ کینٛہہ، بہرحال اس سے زیادہ غافل انسان کون ہو سکتا ہے۔ آزُک یُس زن آزُک یُس زن درس چھِ بہرحال وہ بھی اسی آیت کے ایک اور ٹکڑے پر مشتمل ہے۔ بہرحال گۄڈنیُک ٹکڑٕ یُس زن چھُ کُلُّ نفسٍ ذائقۃ الموت، ہر ذی نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، اس کی تفصیل ہمارے سامنے آئی کہ موت کیا ہے، روح کیسے قبض کی جائے گی، روح قبض کرنے کے بعد روح کے ساتھ کیا معاملہ ہوتا ہے، اور قبر کو اور یُس زن برزخ کے حالات کیا ہیں، بہرحال تمن متعلق پوڑ اسہِ۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور بلا شبہ آپ کو اپنے اعمال کا پورا پورا بدلہ قیامت کے دن ملے گا۔ اب جو آج کا ٹکڑا ہے یہ انتہائی اہم، یہ کیازِ چھِ اہم؟ تکیازِ انسان یا مسلمان کی تمام جو تغدو ہے اس دنیا میں اس کا حاصل یہ ہے کہ مسلمانس چھِ ساری زندگی ہند حاصل یہ آسان کہ بہ گژھا قٲبِل گژھُن کمہِ خٲطرٕ؟ جنتس قٲبِل، اور بہ گژھا بچُن کمہِ نش؟ جہنم کے نار نش۔ وہ انفاق کرتا ہے تو اسی لیے، وہ جہاد کرتا ہے تو اسی لیے، نمازیں پڑھتا ہے تو اسی لیے، اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرتا ہے تو اسی لیے۔ غرض یم تہِ کانٛہہ عمل مسلمان کران چھِ اس کا اصل میں اس کے پاس مقصد کیا ہے کہ اللہ کی رضا مجھے مل جائے، اور اللہ کی رضا کا سب سے اعلیٰ اور سب سے جو اتم مظہر وہ ہے کہ اسے جنت کا داخلہ مل جائے۔ اور سوری لب لباب چھ سارنی عملن ہند کہ انسان گژھِ جنتس قٲبِل گژھُن، سُہ گژھِ جہنم نش بچُن۔ اس لیے یہ آیت کا ٹکڑا انتہائی اہم ہے۔ آیتُک ٹکڑٕ کیا چھِ اللہ تعالیٰ فرمان فمن زحزح عن النار، پس جو کوئی آگ سے بچا لیا گیا، جو کوئی جہنم سے بچا لیا گیا، وادخل الجنت، اور جنت میں داخل کیا گیا، فقد فاز، پس یقیناً وہی کامیاب ہو گیا۔ یعنی اس آیت کے ٹکڑے میں کامیابی کا حقیقی معیار ہمارے سامنے بیان کیا گیا ہے۔ ہم لوگوں نے کامیابی کے معیارات الگ چن لیے ہیں، اسہِ چھِ الگ معیارات بنٲمٕتۍ کامیابی ہند۔ ہاں، کسی کو اعلیٰ ڈگری مل گئی، ہم سمجھتے ہیں کہ یہ کامیاب ہو گیا۔ کٲنٛسہِ گو اتھ کیا میڈیکل پروفیشنس مز داخلہ، ہم سمجھتے ہیں کہ اس سے بڑا کوئی کامیاب ہے ہی نہیں۔ کہاں بنو IIT آج کس دورس مز، أسۍ چھِ ونان أمِس ہیوٗ کامیاب چھُنہٕ کانٛہہ۔
काश आज किसी के पास बड़ी गाड़ी है, बड़ा बंगला है और बड़े बागात हैं, हम समझते हैं कि ये सबसे कामयाब इंसान है। मगर अल्लाह तबारक व तआला हमें या इस आयत के टुकड़े के ज़रिए वाज़ह करना चाहता है और हमें मुतनब्बा करना चाहता है कि ए इंसान, जिन कामयाबी के मायारात को आपने कामयाबी समझा है, ये कामयाबी असल में नहीं है, बल्कि हकीकी कामयाबी कौश फमन ज़ुहज़िहा अनिन नार, जो कोई आग से बचा लिया गया, वह उदखिलल जन्नत, और उसने अपने आप को इस काबिल बनाया कि वो जन्नत में दाखिल हो गया, फ़क़द फाज, पस यकीनन बिलाशुबा वही कामयाब हो गया। सवाल पैदा सपदन कि अल्लाह तबारक व तआला ने आग से बचने के और जन्नत में दाखिले को ही क्यों हकीकी कामयाबी बताया है? क्या अल्लाह तबारक व तआला ने हकीकी कामयाबी? इसके लिए मैंने आपके सामने युस जन जहन्नमुक तज़किर पढ़ो युस जन कुरान पाकस मज आमुच। मैं कोई इधर उधर की बात जहन्नम के बारे में नहीं बताऊंगा, बस जहन्नम का वो तज़किरा जो कुरान में आया है और जन्नत का वो तज़किरा जो कुरान में आया है। इस तज़किरे को जब हम पढ़ेंगे, जहन्नम की हकीकत को जब हम समझेंगे और जन्नत की हकीकत को जब हम समझेंगे, हमें पता चलेगा कि वाकई हकीकी कामयाबी युस जहन्नम के नार निश बचो और युस जन्नतस काबिल हो। बहरहाल आज के दरस में हम जहन्नम की होलनाकी, जहन्नम का जो अजाब है और जहन्नम की जो हकीकत है उसको समझने की कोशिश करेंगे कुरान और हदीस के तनाजुर में, ताकि अस लगे पता कि वाकई युस इंसान जहन्नम निश बचो, नार निश बचो, कि वो वाकई हकीकी कामयाब है। बहरहाल गोडनिच कथ यस जन जहन्नमस मुतलिक याद थयू, जन्नत और जहन्नम के बारे में सबसे पहली बात जो आप याद रखेंगे वो ये है कि जहन्नम अल्लाह की नाराज़गी की निशानी है और जन्नत अल्लाह की रज़ा और अल्लाह की रहमत की निशानी है। जहन्नम अल्लाह ताला सिंद गज़बुक, अल्लाह ताला सिंद नाराज़गी हुन और अल्लाह की बनाई हुई जो कैद है उसका वो निशानी है, उसकी निशानी है। जन्नत दूसरी तरफ अल्लाह की रज़ा, अल्लाह की रहमत और अल्लाह के फजल की निशानी है। दयम कथ यस जहन्नमस मुतलिक याद थयू, क्योंकि आज का दरस जहन्नम के बारे में और जहन्नम की होलनाकी के बारे में है। जहन्नम युस जन ये इंतहाई बुरा ठिकाना है, ये इंतहाई बुरा ठिकाना। कितना बुरा ठिकाना है? बहरहाल इसके बारे में अल्लाह तबारक व तआला ने खुद कुरान पाक में कहा है कि ये बुरा ठिकाना है। वह बिसल मिहाद, और कितना ही बुरा ठिकाना है कौन? जहन्नम। यथ ठिकानस, यथ चीज़स, यथ जो अल्लाह तबारक व तआला बयान कर कि ये बुरा ठिकाना है, उसकी बुराई का आप खुद अंदाज़ा कर सकते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला खुद इस जहन्नम के बारे में फरमाते हैं कि ये इंतहाई बुरा ठिकाना है। बहरहाल जहन्नमस मुतलिक जन दयम कथ याद थयू, सह ये कि कुरान पाकस मज आमुत कि ये जहन्नम जो है, जो ये अल्लाह की तैयार करदा जेल है, इसमें 7 दरवाजे हैं। अच्छे कस दरवाजे? 7 दरवाजे। अब खुद अंदाज़ा कीजिए कि कहाँ हाल आसन या कहाँ मस्जिद आसन, जो बड़ी मस्जिद होगी उसमें ज़्यादा से ज़्यादा कितने एंट्रेंस होते हैं? तथ आसन ज़्यादा को ज़्यादा 3। अब खुद अंदाज़ा लगाइए, उलमा ने कहा है कि लहू सबअतु अबवाब, कि जहन्नम के बारे में अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान में फरमाया कि इसके कितने दरवाजे हैं। तो ये इस बात का इशारा है कि जहन्नम कोई छोटी जगह या कोई तंग जगह, बल्कि या बड़, तवे एंट्रेंस, तवे 7 दरवाजे। और ये भी ज़िमनन आप याद रखें, आज के दरस में हदीस पाकस में आमद जन्नत के इसके मुकाबले में 8 दरवाजे हैं। जन्नत कस दरवाजे? 8 दरवाजे। और हदीस में आता है कि असल में तो जन्नत के भी 7 ही दरवाजे थे, लेकिन फिर अल्लाह तबारक व तआला ने एक दरवाज़ा खुसूसी तौर पर जो रोज़े रखने वाले हैं, यम जन रोज़दार आसन तुमन खतर खुसूसी तौर पर खास दरवाज़ बनान, यात बाबुर रैयान, यानी वो दरवाज़ा जिससे सिर्फ किनका दाखिला होगा, यमन जन एंट्री का सिर्फ कमन रोज़दार, वरना जन्नत के भी पहले 7 ही दरवाजे थे। वो गोडनिच का जहन्नमस मुतलिक लहू सबअतु अबवाब, इसके कितने दरवाजे हैं? 7 दरवाजे। दयम कथ यस जन जहन्नमस मुतलिक, जहन्नम जो है यम जन अमुक अजाब छ, इसमें मुख्तलिफ अजाब होंगे, सांप भी होंगे, बिच्छू भी होंगे,
मुख्तलिफ किस्म की जन इंतहाई खतरनाक खेन तक और इंतहाई खतरनाक किस्म के वहाँ पर मशरूब भी होंगे। मशरूब पीने की चीज़ें जैसे हमीम होगा, ज़क़ूम होगा, गिसलीन होगा और इसी तरह से यम जन क्या मुख्तलिफ किस्म के सिज्जीन यम मुख्तलिफ किस्म के जन खाने और मुख्तलिफ किस्म के खतरनाक शराब वहाँ पर होंगे। कैसे होंगे वो हम पढ़ेंगे आगे। मगर इनके बावजूद यानी सांप, बिच्छू और ये मुख्तलिफ किस्म के खतरनाक खाने और शराब, इसके बावजूद सबसे बड़ा अजाब जो अल्लाह के इस कैद खाने में होगा वो होगा आग का अजाब। सो कमिक अजाब, सो नारुक अजाब। और ये आग कैसी होगी? यह आम नार कह। तसव्वुर कीजिए आज अगर श्रीनगर कुनत गसो, क्योंकि ये मैं कश्मीर की बात करता हूँ जहाँ का ये आबो हवा बिल्कुल मोतदिल है। अगर कुन सात 10 मिनटन जामस मज फसन गाड़ी मज, अगर गाड़ी आसन जामस मज, हालांकि उसकी जो शीशे हैं वो भी नीचे हमने किए हुए होते हैं, वही हकन बर्दाश्त कर, हम बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। क्यों अल्लाह ने आग का अजाब रखा है? क्योंकि आग का अजाब जितना खतरनाक और यूता जन अकिस इंसान से आजिज कर उतना कोई अजाब नहीं करता है। बल्कि बुवंत ही कि आज तो हम मामूली सूरज की गर्मी को जो करोड़ों मील हमसे दूर है उसको बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं, तो जहन्नम की आग को कैसे बर्दाश्त तजुर्ब कोरमुत। अल्लाह तबारक व तआला दीन नजात। अगर कहीं पर कोई एक्सीडेंट हुआ होगा, अगर कुछ एक्सीडेंट गसन छ, अब किसी का सर टूटा है, सर फूटा है या क्या नाड़ी जंग फुचम, फिर भी इंसान जुर्रत करता है और उस लाश को वो देख सकता है। तम पत्त जुर्रत करन वुचन। हाँ, हैबत तो तैयारी होती है मगर फिर भी जुर्रत करता है, देखता है। इसी तरह से कांगो बोन 7 पोरा पे 4 पोरा पे लिफ्ट पे जहाज पे, तब भी उन लाशों को देखने का मन फिर भी करता है, या तब भी इंसान बर्दाश्त कर सकता है। मगर रात आज तक उसमें ओतरे गो इंडिया में प्लेन क्रैश हो या कहीं पर जल जाती है कोई लाश, कोई इंसान उसको देख नहीं सकता है। तम सुन दिल से दहलन। क्यों? क्योंकि ये आग का अजाब जो है ये इंतहाई होलनाक और इंसान को दहशत ज़दा और लर्जा ज़दा करने के लिए सबसे बड़ा अजाब शहदार। यही वजह है कि अल्लाह तबारक व तआला ने जहन्नम में सबसे बड़ा अजाब जो रखा है वो कौन सा अजाब होगा? इसी आग का अजाब। अच्छा, दयम का ये कोई मामूली आग नहीं होगी या ये दुनिया की आग नहीं होगी, बल्कि इस आग के बारे में अल्लाह ताला फरमाता है खुद कुरान में, नारुल्लाहिल मुक़दा। ये कौन सी आग है? ये अल्लाह की भड़काई हुई आग होगी। या खुदाइन को नारस कत कुन निस्बत, पानस कुनत निस्बत, बल्कि रवायत में आमद। हाँ, एक और बात, कुरान की ही आयत है, सयस्ला नारुल कुबरा। इस आग की जो सिफत है अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान में फरमाया है, सयस्ला नारुल कुबरा, यानी ये आग जो है ये इंतहाई बड़ी आग। कुबरा शिबाना का कबीर को बड़ा, कुबरा को सबसे बड़ा, कुबरा इसी सुपरलेटिव डिग्री, यानी ये ऐसी आग हो कि सबसे बड़ी आग। अल्लाह ताला फरमाता है मुतलब अत नारस मुतलब जहन्नम के नार में। अच्छा, कैसी आग होगी? अल्लाह ताला फरमान, इन्नहा तरमी बिशररिन कल कसर। इसकी एक चिंगारी जो होगी वो बड़े बड़े महलों के बराबर होगी। अमिच अख जिसन तंबर आस वथन सा कत बराबर, वो बड़े बड़े महल्लात के बराबर इसकी एक चिंगारी होगी। अब खुद अंदाज़ा कीजिए, चिंगारी अगर एक महल के बराबर होगी तो अमिच लो अमिच यमजन तुम या क्या आसन यमजन अमिच वसन आस तुम शोले कैसे होंगे? बहरहाल ये है अल्लाह की आग। बल्कि रवायतन मुझे आमद फरमो जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमो, जो ये दुनिया की आग आपके पास है, ये दुनिया नार छ, इससे 69 गुना ज्यादा, यानी आमद हदीस में 7 लट आए डुबान या आग, इसको ठंडा किया गया कितनी बार? 70 मरतबा, यानी 7वें हिस्से ये दुनिया नार, यानी 69 टाइम्स शिद्दत का जहन्नम के नारस कम खोद। अब ज़रा कोई अगर मामूली हम शम्मा पर हाथ रखेंगे, रख सकते हैं ये इंसान। और याद रखिए, अगर अल्लाह ताला बचे कंस दंदस दोद, कंस कलस दोद, तब भी इंसान बर्दाश्त कर लेता है निंद्र यस पे खे पहन। मगर अगर जल गया होगा हाथ उसका, या अगर इस क्या पूरा जिस्म जो है वो इस हरारत को और इस अजाब को या इस तकलीफ इसको महसूस करता है।
बहरहाल यह सो नार यह जन अल्लाह तबारक व तआला फरमो अत मज। तीसरी बात यह जन जहन्नमस मुतलिक हदीसस मज आमुत फरमो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमो कि एक मर्तबा जन्नत और जहन्नम में मुबाहिसा हो गया, मुकालमा हो गया। और बुखारी शरीफ में ये रिवायत है एक सातन गो झगड़ का जन्नतस तो जहन्नमस। जन्नत ने कहा कि मेरे अंदर सिर्फ गुरबा और मिस्कीन ज्यादा होंगे, मैं मज आसन ज्यादा कम गुरबा तो मिस्कीन। जहन्नम ने इसके बरक्स कहा, जहन्नमन वोन कि मेरे अंदर ज्यादा मुतकब्बिर और ज्यादा यमजन आसन अल्लाह के बागी और मुतकब्बिर लोग होंगे, यानी मे मज आसन ज्यादा कम लोग मुतकब्बिर लोग, बड़ इंसान यमजन दुनिया में बड़ जाहो हशम थावन अस। मगर जन्नत ने क्या कहा, मुझ में ज्यादा गुरबा और मिस्कीन होंगे। बहरहाल जब ये झगड़ा बढ़ गया, खुश वन पनी तारीफ कर, खुश कर पनी तारीफ, तो अल्लाह तबारक व तआला ने इनके बीच में फिर फैसला कर दिया। अल्लाह तबारक व तआला वो निमन दशवनी मुखातिब कर फरमो, अल्लाह तबारक व तआला ने इनसे कहा कि मैं तुम दोनों को वादा देता हूं कि तुम दोनों को मैं मखलूक से भर दूंगा। तो दशवनी बरोब कम से, यानी आपको भी मैं जिन्नों और इंसों से भर दूंगा और आपको भी मैं जिन्नात और इंसान से भर दूंगा। इवन अल्लाह तबारक व तआला। अच्छा कितना भर देगा अल्लाह तबारक व तआला? हदीसस मुझ आमुद फरमो जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमो कि दुनिया में 1000 में से 999 लोग जहन्नम में जाएंगे, 100 मज गशन 999 लुकत। वो इस हदीस से पता चला कि दुनिया में ज्यादा लोग खराब होंगे, दुनिया में ऐसे ज्यादा लोग कम, बहुत कम लोग वो होंगे जिनको जन्नत का दाखिला मिलेगा। यमन कोकन गए और कुछ खुश नसीब आसन तुम यम जन अथ रेशोस मज पन पान कत काबिल बनाए, जन्नतस काबिल बनाए। अच्छा इतनी मखलूक जहन्नम में जाने के बावजूद भी, यानी 1:999 अगर हम 1000 का तनासब लेंगे, यूता ज्यादा लोग जहन्नमस मज गसन बावजूद ते अल्लाह तबारक व तआला कयामत के दिन इस जहन्नम से कहेगा। और कुरान में है ये सूरह शायद सूरह काफ की आयत, यौम यकूल लिजहन्नम हलिम तलत, वो उस दिन जबकि अल्लाह तबारक व तआला जहन्नम से कहेगा हलिम तलत, क्या तू भर गई, यानी अल्लाह तबारक व तआला बन कमिस जहन्नमस यीत्या लोग त्रान पाती, यानी 999 जहन्नम से कहेगा अल्लाह तबारक व तआला यौम यकूल लिजहन्नम हलिम तलत, और जहन्नम वापस क्या जवाब दी, व यकूल हल मिन मजीद, जहन्नम कहेगी और कुछ है, और कुछ है, यानी मजीद मजीद। इतनी वुसअत और इतनी बड़ी है कौन, अल्लाह की ये जहन्नम। अच्छा जब सारी मखलूक इसमें भर दी जाएगी तब भी जहन्नम कहेगी क्या बन जहन्नम, व यकूल हल मिन मजीद, हल मिन मजीद। और रिवायत में आता है इसके बाद अल्लाह तबारक व तआला अपना कदम इस जहन्नम पर रखेगी, यानी एम्पत है अल्लाह तबारक व तआला पन कदम का जान, इस कदम की वजह से ये जहन्नम सुकड़ जाएगी। एम्पत कैसी क्या सुकड़, फिर जहन्नम कहेगी कत कत या अल्लाह बस बस, यानी अब मैं भर गई, बस बस, क्योंकि वादा लिया था ना, अल्लाह ने उनको वादा किया था कि मैं आपको भी भर दूंगा और आपको भी भर दूंगा। एम्पत वन जहन्नम कत कत बिइज्जती, यानी आपकी जलाल की कसम, आपकी इज्जत की कसम, अब मैं भर गई। ये शिकमिक हाल जहन्नम। अच्छा ये जहन्नम कितनी खौफनाक और कितनी होलनाक है, हदीस मुझ आमद फरमाओ जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और ये तफसीर में भी है, वजीअ यौमइदिन बिजहन्नम, क़यामत के दिन जब इस जहन्नम को घसीट कर लाया जाएगा, जहन्नम इमसातन हशर माशर गए बरपा, क़यामत दो गए बरपा, रिवायत पे आता है जहन्नम को भी घसीट कर लाया जाएगा, और किसको, जहन्नम को भी लाया जाएगा। तमाम दुनिया के लुकन यमसातन फैसला आस गोमुत, जहन्नमियों को जहन्नम का फैसला हुआ होगा और जन्नतियों को किसका फैसला होगा, जन्नत का। अब अल्लाह तबारक व तआला हुक्म करेगा कि जन्नत को भी इस महशर के मैदान में लाया जाए और जहन्नम को भी इस महशर के मैदान में लाया जाए। अब मकसद क्या है, मकसद ये है जन्नतियों को जहन्नम दिखाई जाएगी और जन्नत भी वो देखेंगे, और उन्हें कहा जाएगा कि देखो जन्नतियों, अल्लाह के फजल से, अल्लाह की रहमत से अल्लाह तबारक व तआला ने किस अजाब से आपको बचाया, यानी मन हाल वुचो कि मैं अजाब नहीं जितना अल्लाह तबारक व तआला ने पानी फजल से ना जा। जहन्नमियों को भी दिखाया जाएगा, ए जहन्नमियों देखो अपने करतूतों की वजह से, अपनी बगावत की वजह से, अपने कुफर की वजह से, अपनी नाफरमानी की वजह से किस जन्नत से अल्लाह तबारक व तआला ने आपको महरूम कर दिया है।
वहीं क्या हसरत आस तम सात जहन्नमियन, और क्या खुशी होगी उस वक्त जन्नतियों को कि कम अजाब नश बचे अल्लाह तबारक व तआला, और हुमन क्या हसरत आस कि कम नियामत नश कर अल्लाह तबारक व तआला महरूम। बल्कि मैंने ये रिवायत आपके सामने पहले भी पढ़ी कि अगर दुनिया सारे खोत मुसीबतन मज गिरफ्तार इंसान यमने जहाई तो खुशी आस वचमित, अगर उसको एक गोता दिया जाएगा किस में, जन्नत में, तो वो कहेगा या अल्लाह मैंने कभी देखी ही नहीं है मुसीबत, वैशन साहब मुसीबत वुशमुदी। अब खुद अंदाजा कीजिए कि उस वक्त जहन्नमियों की यास और उनके अफसोस और उनके हसरत का क्या मकाम होगा। अच्छा, इस वक्त जहन्नम किस पर ही अन्न, जन्नत के बारे में कल पढ़ेंगे हम। जहन्नम को कैसे लाया जाएगा घसीट कर, कहाँ पर, इस माशर के मैदान में। रवायतन मुझ आमद कि जहन्नम की 70,000 यम जन आसन जंजीरें होंगी। आज जहन्नमस आसन करित कस 70,000 जंजीर यहाँ लाकम यात मनो, और हर जंजीर को 70,000 फरिश्ते घसीटते हुए लाएंगे। आज जहन्नमस आसन कस 70,000 लाकम आसन, 70,000 फरिश्ते आसन अकिस लाक में ठाप, और फिर भी ये काबू में नहीं आती होगी। और रवायत मुचामद यम साथ जहन्नमियन विश नहीं जहन्नम तम सातनस, ये उस वक्त गुस्से और गजब से इस तरह भड़क रही होगी। सूरह मुल्कस में तकादु तमय्यज़ु मिनल गैज़, ये उस वक्त गुस्से से ये जन अच्छ वन गैज़ ये जन तकादु तमय्यज़ु मिनल गैज़ की बेहतरीन तफसीर की है। तास फिक वुशमुत कैटल ये थावन ये जन ना क्या पावर कैटल से थान ये तक ग्रह यवन तक तुम बबड़ खसन हेर कुन, तो यही हालत हुई होती होगी किसको, जन। और अस वुशमुत ये इंसान गुस्सस मज आसन या लड़ाई कंस आसन पत यम सात सह आसन शरारतस मज तमिस पोस खसन कत की कत कर या अल्लाह ताला बचैन अगर सह बदकलामी कर, यही यह पोस खत यह ग्रह खसमस कत जहन्नमस तम सात। तो इसीलिए काबू में नहीं आती होगी इन 70,000 फरिश्तों को जो इस नकेल को पकड़े होंगे। कितना लाख में आसन 70,000 लाख। अच्छा, ये फरिश्ते कितने ताकतवर होंगे, फरिश्ते कुछ ताकतवर मखलूक, हदीस में आमद फरिश्ते इतनी ताकतवर मखलूक हैं कि अगर एक फरिश्ता मामूली पाव मार दे इस पर जमीन पर, तो पूरी जमीन दहल जाएगी, सारी जमीन सी भूचाल, यूता ताकत कमिस। अब ऐसे ही 70,000 फरिश्ते एक नकील को पकड़े होंगे। ऐसे ही कितनी नकीलें हैं, 70,000 नकीलें। ये अल्लाह तबारक व तआला सुन तैयार कोरमुत जेल, और ये अल्लाह की ये तैयार करदा क्या है, ये जन वनो तम सुन ये बारक या जेल। अच्छा, अब हम चलेंगे कुरानी आयात पर, क्योंकि वक्त को वारिया ज़्यादा। कुरानी आयात में सभी आयात कोट नहीं करूँगा जो अल्लाह तबारक व तआला ने इस जहन्नम के बारे में बयान क्या में लिखित आमिद, मैं सिर्फ वो पढ़ूंगा। अल्लाह तबारक व तआला की ये तैयार करदा क्या है, जेल है। इसने अल्लाह तबारक व तआला से जेल। अब जेल के कुछ असूल होते हैं। ये दुनिया में का इंसान जेलस में गसन, बताओ जो संगीन मुजरिम होता है उसको किस में ढकेल देते हैं, तमिस लक्च बार के मज वुचमुत लक्च बार कश बने तुमन मज बार। अच्छा, पढ़मित लिखमित यम लोग आसन उनको पता होगा दुनिया की बदतरीन जेल आज कौन मानी जाती है। दुनिया में कुछ आज सारे खुद बदतरीन जेल मानना, वो है बरतानिया में गोंतामा बे, सो सारे खुद बदतरीन जेल योन मानना। अब उस जेल का भी आप तकाबुल कीजिए किस जेल के साथ, जहन्नम के साथ। अब फिर देखिए कि वहाँ कितनी सहूलियात आपको फिर नजर आएंगी और जहन्नम कितनी होलनाक है। अल्लाह ताला फरमान ये मेरी बारक, ये मेरी जेल कैसी होगी। अल्लाह तबारक व तआला फरमान इदा उल्कू मिनहा, जब इन जहन्नमियों को अपनी अपनी इस पनागाह में भेज दिया जाएगा। इदा उल्कू, जब इनको डाल दिया जाएगा, मिनहा किसमें, इसमें, मकानन ज़य्यक़न मुक़र्रनीन, ये जगह इनको कैसी होगी, इंतहाई, मकानन को जगह, मुक़र्रनन मुक़र्रमीन इंतहाई तंग, या इस इंतहाई क्या तंग जाए। दाउ हुनालिका फ़ुबूरा, कितनी तंग होगी, अल्लाह तबारक व तआला फरमान कि ये पहलू भी बदल नहीं सकेंगे, यानी लड़ते हके नहीं फिर, इतनी तंग जगह होगी किनके लिए, इनके लिए। हाँ, आज देखिए जैसे गोंतामा बे बारक, वहाँ तो फिर भी इंसान कम से कम अपने आप को तो वास्ट हकन करे, चिनाकन करे। अब वो मैं कंपैरिजन नहीं करूँगा क्योंकि है बनता ही नहीं कोई कंपैरिजन है अल्लाह की जेल और इंसानों की जेल। तो ये बारक के साथ सिमन खतर ये जेल कैसी होगी इनके लिए, इज़ा उल्कू मिनहा मकानन ज़य्यक़न मुक़र्रनीन दाउ हुनालिका फ़ुबूरा, ये इतनी तंग और तारीक जेल होगी कि ये अपने पहलू भी उस वक्त बदल नहीं सकेंगे। अच्छा, आप अंदाज़ा कीजिए
हदीस में आमद कि ये आग कैसी होगी जहन्नम की, वो मैंने बताया आपको। हदीस में आमद कि दुनिया की आग को 1000 बरस फरिश्तों ने धोखा, यानी 100 वरियस आई क्या फुकनान ये नार ये। पत ये पहले कैसी थी, सफ़ेद थी आग, फिर ये सुर्ख हो गई, पत गई क्या सुर्ख, फिर 1000 सालों को धोखा गया इसको, फिर ये काली हो गई, पत गई किस ये। चनाचे जहन्नम की आग काली है, यानी बिल्कुल आइंगटे आइंगट से। अब अंदाजा कीजिए, एक इंसान बिल्कुल काली कोठरी में है और ऐसी कोठरी है जिसमें पहलू बदलने की भी गुंजाइश नहीं, ऊपर से सांप बिच्छू और इंतहाई यमजन खतरनाक जानवर, और उस पर आग उस पर घसाई जाए, यानी पच आग धुंकई और कस आग जिसकी मैंने आपको सिफातें बताई। बताइए इस शख्स का और इस आलम, इस खतरनाक हाल में अमिस क्या हालत है। बल्कि हदीस से रवायत में आमद जहन्नमी यमजन इनके जिस्म को फुला दिया जाएगा। फुला दिया जाएगा मतलब ये जिस्म से फोक खाड़न, यानी यमिन हुरान अजाब से हुन कुता हुन। हदीस में आता है कि एक दांत जहन्नमी का ओहद पहाड़ के बराबर होगा। यूत हुयर तो यूत खाई मन क्या जहन्नम के अजाब से युत अजाब कि एक एक दांत किस पहाड़ के बराबर होगा, ओहद। और इन पट्ठों के दरमियान अकि फेक पे 20 फेकिस मुसाफत मा बैनल मक्का वल मदीना, यानी मक्का और मदीना के बीच में जितनी मुसाफत है इतनी मुसाफत हो जाएगी। यूता हुनियम कम जहन्नमी। तो अल्लाह ताला फरमान ये तो होगा इनकी जगह, ठीक है, वह जेल खानस में जगह इनकी ये है, यानी मकान मुकर्रनीन, इंतहाई तंग तारी जगह जिसमें पहलू बदलने की भी गुंजाइश नहीं है। अच्छा वहाँ ये दुनिया कानून जब बारक में ले जाते हैं वहाँ उसको कहते हैं कपड़े निकालो, अब हमारी वर्दी पहनो, ये जेलों में क्या कौस वर्दी लागना, वहाँ तो जेल की वर्दी होती है। तो जहन्नमी जब जहन्नम में दाखिल हो जाएंगे, जगह का तो पता चल गया कौन सी जगह है, अब इनको वर्दी पहनाई जाएगी। अच्छा ये वर्दी कैसी होगी, अल्लाह तबारक व तआला फरमान सूरह हज में फल्लज़ीना कफरू, हाँ ये लोग जिन्होंने अल्लाह का क्या किया होगा, इनकार किया होगा, नाफरमानी की होगी, जब इनको जहन्नम में पहुंचा दिया जाएगा, कुत्तिअत लहुम सियाबुम मिनन नार, कुत्तिअत इनके कपड़े काटे जाएंगे, कफ्तन ही करना, कुत्तिअत ना कफ्तन करना, यही दर पालवन ही कफ्तन करना, मगर किम से, मिनन नार, किससे बने होंगे, मिन नार, ये आग के बने होंगे, यानी मन ये लाकन लिबास के नार। अब खुद अंदाजा लगाए वो टेलर कैसे होंगे और वो कौन होंगे कि यमजन साटन यमजन कफ्तन करन पालो के में कासन। फल्लज़ीना कफरू कुत्तिअत सियाबुहुम मिन नार, जो लोग कुफर करेंगे अल्लाह तबारक व तआला जब जहन्नम में उनको धकेलेगा तो उनको एक खास किस्म की वर्दी लगी होगी, सब वर्दी के भी चाहे बने मस ना, बल्कि सूरह हज में ही आता है आगे, ये ले पढ़ो इंशाअल्लाह रहमान, अगर अल्लाह ताला ने सिलसिला जारी तो वहाँ पता चलेगा। एक तो ये आग के ये होंगे क्या ये लिबास, दूसरा इनके ऊपर गंधक छिड़ी होगी, यानी उन पे मस्जिद को गंधक ताकि ज्यादा दर्जे नहीं। और इस आग के लिबास को जब ये पहनेंगे, यशमिनी जिल्द ये दाइज ना कुदरती तौर पर। और याद है जो ये इस वक्त मुझे बताना नहीं था वक्त बहुत ज़्यादा, थाईलैंड ये क्या वन डर्माटोलॉजिस्ट उसने तहकीक की है 15 साल कि इंसान से रिसेप्टर्स पैन रिसेप्टर्स को दग महसूस कर, वो पैन रिसेप्टर सबसे ज़्यादा कहाँ पर होते हैं, स्किन में। ब्रोट तहकीक ब्रोट साइंसदान वन कि पैन रिसेप्टर्स असली कत ब्रेनस मज, मगर आज उसी ने ये तहकीक की है, थाईलैंड डर्माटोलॉजिस्ट क्यों हाई के किसान नाम मिशन के याद, उसने तहकीक की कि सबसे ज़्यादा पैन रिसेप्टर्स इंसान को कहाँ होते हैं, इस जिस्म में। तो अल्लाह तबारक व तआला इनको यही आग के जब ये कपड़े लगाएगा इसकी वजह से इनकी ये जिस्म गुल जाएगी, वो धक सा आस्ते सारे को पैन कहते हैं। अल्लाह ताला फरमान सुम्मा बदलना जुलूदहुम बअद जुलूद, हम इनको एक जिस्म की खाल या ताह ये गिर जाएगी, हम दूसरी चलाएंगे, सच पे वो तीसरी चढ़ाई, ताकि ये इस पैन यजन ये वुमर बार क्या फिर ये है हाल। अल्लाह ताला बचे जहन्नम के नार निश। अच्छा अब जब भारत में भी पहुंच गए, लिबास यानी वर्दी भी दी गई, इनको कौन सी दी गई, वहाँ दिवन थोड़ा बहुत कमल वमल बिस्तर बिस्तर चलो आराम ही करे घंटस खंडस, लेकिन वहाँ आराम नहीं होगा। अब बिछोना कैसा होगा, उनके लिए कमल कौन सी होगी। अल्लाह ताला फरमान लहुम मिन जहन्नम मिहाद, लहुम मिन जहन्नम मिहाद, मिहाद वनान बिस्तरस बिछोना, महद यथ वनान महद गो मंजुल
महदस मज, महद से लेकर लहद तक ये जन इल्म हासिल कर। महद कहते हैं असल में किसको? क्रैडल, मंजुल या तनज। अल्लाह ताला फरमाता है लहुम मिन जहन्नम मिहाद, इनके लिए जहन्नम में मिहाद व मिन फौकहिम गवाश, और जो उनके ऊपर गवाश बना का चादर या कमर या बिस्तर, वो किसका होगा? मिन्नार, वो भी आग का ही होगा। यानी सोरी इनका ओढ़ना, इनका बिछोना, इनकी कमल, इनकी रजाई बिस्तर, ये सब किसका बना होगा? आग ही आग। और यथ बार की मुजिम आसन तथ आसे एसी लगित, तथ आसे चून करित, तथ आसे रंग रोगन करित, अल्लाह ताला फरमान लहुम मिन फौकहिम ज़ुललुम मिनन नार, इनकी छत जो होगी वो भी आग की बनी होगी। व मिन तहतिहिम ज़ुलल, और जो इनका फर्श होगा वो भी किसका बना होगा? वो भी सिर्फ आग का बना होगा। और यहाँ तक सिलेक्टेड आयत सिर्फ कर, बाकी आप खुद पढ़ेंगे ये जन कुरान पाक में वुचित जहन्नम। अब इसके बाद यदि यम जहन्नमी अत हालतस मज आसन, यानी जगह भी सिर्फ आग ही आग, पहलू बदलने की भी हालत नहीं, सूरत नहीं, उनका लिबास भी आग ही आग, पेट गंदुक तक छिड़के, और फिर जिस्म एक तह गुल जाती होगी तो दूसरी तह चढ़ाई जाएगी, क्या अज़ाब है। फिर उनका ओढ़ना बिछोना वो भी क्या है? सिर्फ आग ही आग। अब ये जहन्नमी यम करें तमन्ना, काश खुदाई दी है ना मैं मौत ही ऐसी, ताकि अस गसा इन अजाब निश क्या आज़ाद। लेकिन कल ही हमने पढ़ा हदीस, मौत को भी मौत आ चुकी होगी, यानी मौत में क्या गमज खत्म, अब मौत आएगी नहीं आएगी। अल्लाह ताला फरमान व याती हल मौत मिन कुल्ल मकान, यानी व याती हिल मौत मिन कुल्ल मकान वमा हुआ बिमायत, यानी जब ये पहुंच जाएंगे अपने ठिकानों पर, और जब इस अजाब के इस मज़े को चखेंगे, ये साथ अजाब खुदा ये क्या कहेंगे? मिन कुल्ल मकान वहुवा बिमायत, काश हमें मौत ही आ जाती, या इलाहा बारिला खुदाया ऐसे दित क्या मौत ही होता। बल्कि बीज कुरान पाक में फरमान अल्लाह ताला फरमान ला यमूतु फीहा वला यहया, न तो वहाँ वो मरेंगे न तो वो जिंदा होंगे, यानी ये तो जिंदा लाशें होंगी, ये ऐसे ना मरें तक न रोजें जिंदा तक। तो अब क्या होगा? वहुम यस्तरिखून फीहा, अल्लाह ताला फरमान कि वहुम यस्तरिखून फीहा रब्बना अखरिजना अमल सालिहा, ये अल्लाह से आहोजारी करेंगे। यम करें यम जहन्नमी जहन्नमस में क्या आहोजारी, क्या आहोजारी करें? वहुम यस्तरिखून, ये अल्लाह से दरख्वास्त करेंगे, या अल्लाह से भीख मांगेंगे, गिड़गिड़ाएंगे। फीहा, कहाँ पर? इस जहन्नम में। रब्बना, ऐ साने खुदाई, अखरिजना, अख मौका दे अस काट तो ये नबर नअमल सालिहा, अस करहा वही नेक अमल, वही क्या करो अस नेक। मगर अल्लाह ताला फरमाएगा कल्ला, हरगिज़ न, क्योंकि हमने तो आपके लिए पैगंबर भी भेजे थे, हमने तो आपके लिए खबरदार करने वाले भी भेजे थे, क्या आप तक वो नहीं पहुंचे थे? तो ऐसा वक्त में तुम खबरदार करने वाले यहाँ डरावन वाले के, इसलिए आपको कोई मौका नहीं दिया जाएगा। अच्छा, अब जब अल्लाह से ये बिल्कुल वैसे नहीं, क्या खुदा ऐसी कैसी नाव में बिल्कुल खुदा को इनकार, अब तो यहाँ पर न तो आपको मौत आएगी, न तो आपके लिए ज़िंदगी ही है, न तो आपको यहाँ से निकाला जाएगा, न तो आपको मोहलत दी जाएगी। बहरहाल रवायतन अम्बल की रिवायत क्या कुरान की आयत है, ये आप जाएंगे जहन्नम के दारोगा के पास। दारोगा के मिश वन, दारोगा को इंचार्ज आता ऐसे, पर पुलिस वालिस वन दारोगा उर्दू पढ़े असली। आप जहन्नम के दारोगा के पास ही जाएंगे, उसका नाम है मालिक। तमिश ना क्या? मालिक। हालांकि असल में ये लकब है इसका मालिक, ये में आते दारनम दारोगी जरा जिस पे आता है। बल्कि रवायत में आमद ये साथ जन महराज किस मौके पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ न्यूक आसमान पे, वहाँ उनकी मुलाकात बहुत सारे अल्लाह के मुकर्रब बंदों से हो गई। तमो मज कोर अख मुलाकात वो अमिस जहन्नम के दारोगा से, कमिस से मालिक से। जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम फरमो रसूल सुन ये कुछ डरावनी शख्स, डरावनी सूरत वाला शख्स, क्योंकि उनकी शक्ल ही डरा, जो जहन्नम का दारोगा होगा वो कैसा होगा। बहरहाल, और इसके चेहरे पर कोई मुस्कुराहट नहीं, कहीं थी मुस्कुराहट छन, हत्ता कि जितनी देर के लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास वो रुके रहे ये दारोगा मालिक, उनके चेहरे पर एक लम्हे के लिए भी मुस्कुराहट नहीं आई। बल्कि बाकी यम सारी संख्या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, चाहे जिब्राइल मिले, चाहे बाकी अंबिया मिले, बाकी फिर में वो बहुत खंदा पेशानी के साथ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मिले हैं। मगर अमिस मालिक सिंदिस चेहरस पे फूर न अकिस सेकंडस मुस्कुराहट। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोर ये अथवा इरशाद फरमो जिब्रील, जिब्रील ये कौन है? जिब्रील को अर्ज या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये जहन्नम के दारोगा मालिक हैं, इनको सलाम कीजिए। अमन करिए क्या सलाम। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हंसे सलाम करें, मगर मालिक ने सलाम में पहल की,
सलाम कर कम पहल मालिकन उन्होंने ही सलाम किया अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह तह पे सलामती ए अल्लाह के रसूल। बहरहाल पत कोर अर्ज जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम फरमोह कि या रसूलुल्लाह जब से इनको अल्लाह ने पैदा किया है तब से इनके चेहरे पर मुस्कुराहट कभी नहीं आई। यानी यहदिस चेहरा जैसे मुबारक पे मुस्कुराहट आमद क्यों? क्योंकि अल्लाह ने उनको उसी काम के लिए तो बनाया है। अब ये जहन्नमी अल्लाह से मायूस होकर किसके पास जाएंगे? इस मालिक के पास। माइनिम सुपारी दरखास्त करना कमिस से मालिकस। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान में वो इनका वो रोना धोना नकल किया है। व नादो या मालिक यम क्या यम जहन्नमी करन नादो नादो को नाद लायन आहोजारी पुकारन कमिस या मालिक ए मालिक यानी ए जहन्नम के दारों जिसका नाम क्या होगा? मालिक। लियक़ज़ी अलैना रब्बुक तलसा रब्बस कर तो सानि बदल दार पार फरियाद कि सोन मामल चुकाव यानी अस दित मौत यानी हमें अब मौत ही अता कर। तो मालिक क्या कहेगा? मालिक वन कौल वो वापस जवाब देगा। सुकुस दी जवाब? मालिक दी जवाब अमा कुता कल दी जवाब हदीस में आमुत 1000 साल के बाद वो जवाब देगा। अकिस वही बोय से जानते तिहज का और 1000 साल कहाँ का? जहन्नम का। कोता बरी वो दोह बोड़ यौमा युख्शर जिसन जहन्नमुक दोह जिसन या जिसन माशरुक दोह वो अलग अलग हिसाब से होगा। यम जन्नती आसन तिमन बास नहीं किहन तिमन बास आख चू। यम जहन्नमी आस अपने अपने अमलों के हिसाब से उनको लगेगा कि ये दिन कितना बड़ा होगा। बल्कि कुरान पाक में आमुद कि खमसीना अल्फ सना एक दिन वहाँ 50,000 साल के बराबर होगा। तो अमी हिसाब करता अंदाज सास वुहर करता मैं ज़रा 50,000 वरी। अब इतने सालों के बाद ये मालिक इनको वापस जवाब देगा। क्या मैंने कौला इन्नकुम माकिसून दफा हो जाओ इन्नकुम माकिसून आपको यहाँ से निकलने की कोई सूरत नहीं है। यानी ये न्यारनच कहाँ सूरत था? आखिरी आयत क्योंकि वक्त बहुत हो गया। रवायतन मुशामुद हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसऊद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत करन कि जो मैंने पहले इसके इज़न में रवायत हुई कि जहन्नम को घसीट कर लाया जाएगा कहाँ? माशर के मैदान में 70,000 इंसान आसन तथ यम लाकम या यम जन आसन तथ नकील 70,000 फरिश्ते एक एक को। तो उस मौके पर अल्लाह तबारक व तआला आस मज मज करनावन मुकालमा ये वह जनती गसन जनतस जहन्नमी गसन कोत जहन्नमस। अब कभी कभी मुकालमा कराता होगा अल्लाह तबारक व तआला जहन्नमी तो जनत यानी जनतियन आस हावन कोई साथ हाल वुशु हमन क्या हाल जहन्नमियन ते आस वन मज मज हावन हाल कमन हन वुशु कमन आशर मज हम जन्नती। और कुरान पाक में है कुरान पाकस मज कि एक साथ अकिस मौके पर जहन्नमी वुशन यमन जन्नती त्रायन जहन्नमियन को नजर कालू मा सलककुम फी सकर यम जनती वन यमन जहन्नमियन हो तावन जदा अस वतो तह के वातनो और अ सकरस मज कत अ सकरस केम चीजर वातनो तह जहन्नमी दिन वापस जवाब कालू लम नकु मिनल मुसल्लीन हयो तावन पे तुमन कोठन अस दुनिया में नमाज पढ़न की लम नकु मिनल मुसल्लीन वलम नकु नुकज़िबु यौमिद्दीन और हम इस कयामत के दिन को झुटलाते थे। दुनिया में ऐसे झुटलावन का कयामत की दौर। तो इसका मतलब है जन्नती और जहन्नमी के बीच में कभी कभी मुकालमा किसने मुकालमा होगा? या इस बुनियादी तौर पर मुकालमा अम खतर जन्नती अम खुद ज्यादा खुश गसन शुक्र खुदाया इसके अजाब नहीं बचाई और जहन्नमियन ज्यादा हसरत गसन तिकाज युस इंसान अजाबस मज पे राहतस मज वुच पे तमिस ज्यादा मेंटल टॉर्चर गसन और ज्यादा हसरत गसन। तो ऐसा ही एक मौका होगा कि अल्लाह तबारक व तआला कर यमन जन्नतियन नजदीक कमन जहन्नमियन नजदीक अब ताकि दोनों आपस में देख सके। अच्छा रवायत में आमुद ये जन्नती यम जन जहन्नमी जहन्नम आसन जब ये इस तपिश से जल उठेंगे यम करें तमन्ना काश क्या त्रशी दीहन मन या क्या चौनक्यू तो दीहन क्या इस पर जेल मुझे बाहर तो आसन ताकि चाहे नटिस मुझे कुछ त्रेश आसन ये भी तमन्ना करेंगे त्रेश दिन यम साथ तमन्ना करें त्रेश सूरह मोहम्मद मुझ इनको पिलाया जाएगा एक खास किस्म का मशरूब हमीम इनके ही जख्मों का पीप और एक खास किस्म का एक ज़क़ूम रस पुलन क्या ज़क़ूम वो ऐसा होगा अल्लाह ताला फरमावन कि कुरान सूरह मोहम्मद में इसका जिक्र है कि जब ये पिएंगे इसको ये खोलता हुआ पानी होगा या इस क्या खोलता हुआ पानी को आता है ग्रक से जब ये पिएंगे इसकी वजह से इनकी आंतड़ियां निकल जाएगी और वो टुकड़े टुकड़े हो जाएगा अंदरमीन नीर
वो ये कैसा शराब और कैसा ये होगा। बहरहाल इसी वजह से ये साथ तमन्ना करें काश त्रोशी दी है का। बहरहाल अल्लाह तबारक व तआला जन्नत को लाएगा नज़दीक, जहन्नम को भी नज़दीक लाएगा। तो ये कहेंगे वनादो अस्हाबन नार, इस मौके पर अस्हाबन नार नादो, नादो क्या वो नाद लायन कौशिक पे इस्तेमाल कर यम दिन क्रैक अस्हाबल जन्नत कमन दिन क्रैक अस्हाबल जन्नत जन्नत ये दिन क्रैक क्या क्रैक दिनस अन अनफिजू मिनल मा हो अस कुन पिल तो त्रोश दामा अस दी तो त्रोश दामा अस दी तो नामा ये कुछ तुम आसे ना शराब तुम आसे मुख्तलिफ किस्म की नाम ते चावल। तो ये जहन्नमी जन्नतियों को कहेंगे वो आख कतरा आख दामा इस पटनस आलू, तो ये जन्नती वापस जवाब देंगे इन्नल्लाह हर्रमहुमा अलल अलल काफिरीन, अल्लाह तबारक व तआला ने इस पानी को इस शराब को काफिरों पर हराम कर दिया है। यानी अशन इजाज़त आप पर तो ये चीज़ें क्या कर दी गई हैं, हराम कर दी गई हैं। बहरहाल ये जहन्नम क्या थोड़ा बहुत इसको मैंने कहा इंट्रोडक्शन, वरना जहन्नम की जिस तफसील से अल्लाह तबारक व तआला ने भाई 8 मिनट भी हो असली बात तो अब करनी है मुझे। ये इंट्रोडक्शन योतन केम्युक जहन्नम। अब खुद अंदाजा कीजिए अल्लाह ताला फरमान फमन ज़ुहज़िहा अनिन नार, जो कोई इस आग से बचा लिया गया व उदखिलल जन्नत, और जन्नत में दाखिला मिल गया। जन्नत का हम काल पढ़ेंगे, ज़्यादा मायूस गसन जन्नत का तज़किरा हम काल पढ़ेंगे, मगर वह करी पाने अंदाज युस इंसान अभी जहन्नम निशा बचान वो कामयाब नहीं है, सुच ना हकीकी कामयाब। आज हम आज गसन अश अश इन सेलिब्रिटीज को जब देखते हैं या स्पोर्ट्स पर्सन को जब देखते हैं हाई क्या कैरियर हाई कस कामयाब जिंदगी रोनाल्डो कस कामयाब जिंदगी फिल्म स्टारन हैं, लेकिन काल को जब जिस या ताउनस पगाह लगन और जो इनका मुस्तकबिल है तो बताइए कामयाब है या नाकाम है। इसके बरक्स एक इंतहाई मुफलिस मोमिन यानी सख्तियों में पानी जिंदगी गुजार कल को जब उन नियामतों में वो देखेगा इन जहन्नमी को, आप बताओ कामयाब वो है या ये कुछ कामयाब। इसलिए अपनी आंखें खोलो और कुरान के प्याराए से इस दुनिया की कामयाबी योजन और असली कामयाबी और असली नाकामी को पहचानो, ये पहचानो। आज ना हम बातें कर रहे हैं बहुत उधर जवान आज बाज़ाब्ते फेस या क्या इंटरनेटस पे बाज़ाब्ते लिखित कुछ स्पोर्ट्स पर्सन केम ब्रांड त्रेश चवन और वो 1 लीटर किस हिसाब से मिलता है। आज सिर्फ अश ओहो आज जवान गसन तो विराट कोहली चवन फलान ब्रांड त्रेश, रोनाल्डो तो मेसी चवन फलान ब्रांड त्रेश। कल का उनका अंजाम देखिए कौन से पानी पिएंगे वो, हाँ ऐसा पानी जो उनके अंतड़ियाँ बाहर निकाल के रखेगा। अब कामयाब वो हैं या हम हैं इंशाअल्लाह रहमान जिनको ईमान दिल में है, कुछ में कामयाब। बल्कि अल्लाह तबारक व तआला ने इस मामले को भी कुरान में ही वाज़ा कर दिया, ला यगुर्रन्नका तक़ल्लुबुल लज़ीना कफ़रू फिल बिलाद। अल्लाह तबारक व तआला मोमिनन ला यगुर्रन्नका तक़ल्लुबुल लज़ीना कफ़रू फिल बिलाद, हाँ इन काफिरों का चलना फिरना ऐशो ऐशा दुनिया में करना ला यगुर्रन्नका इनसे दोखस मज त्राई इन ऐश यह गाड़ तो यह जन वुचन से सेलिब्रिटियन हूँ बड़ बड़ नाच तो नगमा आज ला यगुर्रन्नका तक़ल्लुबुल लज़ीना कफ़रू यह चार्म यह सेलिब्रिटी यह कल्चर ये दोखस मज त्राई ला यगुर्रन्नका तक़ल्लुबुल लज़ीना कफ़रू फिल बिलाद मताउन क़लील। अरे ये तो कलील मता है, ये मोहमूली कहस कालस रोजन बोल। सुम्मा मअवाहुम जहन्नम, अन करीब हम इनको कहाँ पहुँचाने वाले हैं, जहन्नम में पहुँचाने वाले हैं। वह बिसल मिहाद, और कितना बुरा ठिकाना है जहन्नम। और ये ना बुरा ठिकाना अल्लाह ने इसको कहा बुरा। तो इसलिए ये जन सेलिब्रिटी कल्चर और सेलिब्रिटी फॉलोइंग कल्चर से खुद अंदाज़ा कीजिए कि हम किन के पीछे जा रहे हैं और हम किन के पीछे चल रहे हैं। असली कामयाबी को तवश अल्लाह ताला फरमान फमन ज़ुहज़िहा अनिन नार, जो आग से बचा लिया गया। अब बताइए कोई IITN है, हाँ उसका पैकेज साल का है 20 करोड़ 50 करोड़ या $10 बिलियन। बताओ $100 बिलियन कहाँ तक रहेगा, तब तक जब तक जिंदा है। बल्कि आज अखबार पढ़ू जो साबिका सदर है इंडिया यूजन अमेरिका साबिका सदर कुछ जो बाइडन, उसकी हालत देखिए प्रोस्टेट कैंसर से क्या हो गई है। हाँ फिर ये सब कुछ यहीं पर रह जाएगा। इसलिए हकीकी कामयाबी कुछ अल्लाह ताला फरमाऊँ फमन ज़ुहज़िहा अनिन नार। आखिरी का इम्पॉर्टेंट का सवाल पैदा सपदन, अब हम इस आग से कैसे बचेंगे। ये तो अल्लाह ने कहा, अब तो कोई सूरत भी अल्लाह ने तो वो भी बताया होगा ना कि कैसे बचेंगे इस, और कैसे दाखिला मिलेगा कहाँ का
जन्नत का। इस मसले को भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए से हल कर दिया गया। रवायत में शामिल फरमो जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रिवायत करन और बुखारी शरीफ की रिवायत है और शायद गालिबन मुस्लिम में भी है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमो हुफ़्फ़तिल जन्नतु बिल मकारिह व हुफ़्फ़तिन नारु बिश्शहवात। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमो हुफ़्फ़तिल जन्नत, जन्नत को घेर लिया गया, जन्नत को घेर लिया गया। किससे? हुफ़्फ़तिल जन्नतु बिल मकारिह, नफ्स पर गिरा होने वाली चीज़ों से। यानी जन्नतस वाताई से कुछ चीज़ जब नफ्स को कंट्रोल में रखोगे, ये नफ्सस कंट्रोलस में थाए ये ख्वाहिशातों निश पान पान बचाई थाए, यानी दुनियाई ख्वाहिशात दुनियाई लज्जतें जो है इनसे जब अपने आप को बचा के रखोगे तब जाकर कहाँ पहुँचोगे? जन्नत। व हुफ़्फ़तिन नार बिल मकारिह ओ व हुफ़्फ़तिल जन्नत बिल मकारिह व हुफ़्फ़तिन नार बिल शहवात, जहन्नम को शहवात से घेर दिया गया। यानी शहवानी ख्वाहिशातन पानियन दुनियावी यन कल्चर दुनियावी लज्जत दुनियावी ऐशो अशरत अगर ये खाने ब्यूठो ये आपको कहाँ तक पहुँचाएगा? जहन्नम में। हाँ, नफ्स को कंट्रोल करके रखोगे, नफ्स को बिल्कुल अल्लाह के रास्ते पर चला के रखोगे तो कब पहुँचोगे? ये सबसे आसान तरीका है जन्नत में जाने का और जहन्नम से बचने। यानी अपने नफ्स को कंट्रोल करके रखना, नफसानी ख्वाहिशात उनको अल्लाह की ख्वाहिशात के ताबे बनाना, जन्नत मिलेगी। नफसानी ख्वाहिशात ने इत्तिबा करे तब ये आपको कहाँ पहुँचाएगी? यह आपको जहन्नम में पहुँचा के रखेगी। आखिरी बात आज की दर्स रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमो आदिवन में कि बहुत कम लोग जन्नत में जाएंगे। 999 कहाँ जाएंगे? बाईं तरफ। सिर्फ एक आदमी 1000 में से कहाँ जाएगा जन्नत? मगर उसका नुस्खा भी बता दिया। हदीस में आमद यम साथ जन्नत आ बनाना और जहन्नम ते आ बनाना। जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम ये जन्नत नज़ार तक और जहन्नम, क्योंकि फरिश्ते तो हमेशा रहते। दोपना फरिश्तों पर अर्ज यार अल्लाह ये जन्नत इतनी खूबसूरत है, इतनी आरामदेह है कि अगर आपका कोई बंदा इसको देखेगा वो कभी भी जहन्नमी काम नहीं करेगा। उसका जहित जहन्नमी काम सकोन गैस अगर जहन्नमस कुन दौरा लगो चकर वो अत वोनक ये बारला खुदा यह यूत खतरनाक यूत बुर ठिकान कि अगर चोन बंद कह ये वुच वो कभी भी इस रास्ते पर नहीं चलेगा। सह गस ओकुन तेल बल्कि सह कोकुन गस जन्नतस कुन। मगर पत हो अल्लाह तबारक तआला निमन फरिश्तन हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम की आयत में जो फरिश्ते देखने गए पत हो बात जन्नतच वत होवस और जहन्नमच वत हो। ये जन्नतच वत वुचक इतनी मुश्किलात से भरी हुई, इतनी मुसीबतों से परेशानी से भरी हुई। जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम फरिश्ते ने अर्ज किया या अल्लाह इस पर तो कोई नहीं चलेगा, अत वत पे पाकी नहीं कह यीजा मुश्किलात यीजा मसाइल यीजा परेशानी ये हमें बात वुच कमिच जहन्नम इतनी खुशनुमा यूता खुशनुमा रास्ता यूता आराम तलबी हुंद रास्त यूत आसाइशों से वलित रास्त यूत ख्वाहिशातों से वलित रास्त। फरिश्तों ने अर्ज किया या अल्लाह यहाँ तो सभी आएंगे, अत वत कुन सारी अट्रैक्ट गसन अत वत कुन सारी गसन कत मायल। यही जन्नत है, यानी यही तो आजमाइश है ना। इसलिए अल्लाह तबारक तआला ने इस आयत के आखिर पर कहा वमल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर। ये दुनिया की जो जिंदगी है, दुनिया का जो सामान है यानी वत यमजन छ मताउल गुरूर, ये क्या है? ये दुनिया का बहुत बड़ा धोखे का सामान है। इसी धोख यानी नफसानी ख्वाहिशात की इत्तिबा करोगे लज्जत मिलेगी, ये धोखा है। बल्कि असल में रास्ता वो है जो इस धोखे से आपको निकालेगा। अल्लाह तबारक व तआला से मांगो दुआ कि रब्बुल आलमीन बचाइए जहन्नम के अजाब निश और अस्करीन का बरा काबिल जन्नतस काबिल। और आखिरी नुस्खा मैं बताऊंगा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमो दुआ अजो कर जन्नत खातिर केम खातिर अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुकल जन्नत व अऊदु बिका मिनन नार। हदीस में आमद यो शख्स 3 लटि मांगी ये दुआ। कुछ दुआ? अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुकल जन्नत व अऊदु बिका मिनन नार। जन्नत खुद कहती है या अल्लाह इसने 3 बार तुझे तलब किया है, इसको जन्नत दे दे। और जहन्नम खुद से अल्लाह से दरखास्त करती है या अल्लाह इसने आपसे पनाह मांगी है 3 बार के 3 बार या अलाउ तो इसको पनाह दे दे। केमिस दे पनाह। और हज़रत अनस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत कर कि अक्सर दुआ युज रसूलुल्लाह से मांगन सो कुछ दुआ मांगन कस पता रसूलुल्लाह से कुछ दुआ अक्सर मांगन रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना वफिल आखिरति हसना वकीना अज़ाबन्नार। उस दुआ में क्या मांगते थे रसूलुल्लाह वकीना अज़ाबन्नार, मगर दुनिया हसना अता
آخرت یاد ہے وقنا عذاب النار بھی بچا کے بھی نش. یہ محبوب ترین دعا اور سب سے زیادہ پڑھی جانے والی دعا ہے کن سے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پناہ منگن کمی نش؟ جہنم نش. اس تہ گژھِ بار بار پناہ منگن اللہ تبارک و تعالیٰ کمی نش؟ جہنم نش. کیونکہ جہنم سے بچانے والے ہماری طاقت نہیں ہے بلکہ یہ اللہ کا احسان اور اللہ کا رحم ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر جہنم نش. اس لیے بار بار گژھِ خدایس دعا تہ منگن جہنم نش بچنش. رب العالمین منگو دعا اللہم انی اسألک الجنت واعوذ بک من النار. اللہم انا نسألک الجنت ونعوذ بک من النار. اللہم انا نسألک الجنت ونعوذ بک من النار. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. آمین برحمتک یا رحمن.